हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का वीडियो इज़ गोइंग टू बी द थर्ड एंड द लास्ट वीडियो फॉर द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। तो आज के इस वीडियो में व्हाट आर वी गोइंग टू सी? वी आर गोइंग टू सी एंजाइम्स। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, एज आई एम टॉकिंग टू यू और एज यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, are you aware कि thousands of chemical reactions are happening in your body without your knowledge, without your permission also, at breakneck speed? बहुत fast हो रहा है. Why? Because of some tiny molecules called enzyme. What are these enzymes? वो definition में जाने से पहले, are you aware that these tiny molecules, जिसको हम enzymes बोल रहे हैं, they are so efficient that without them our life or the life processes will just come to a standstill? Yeah, you can say if not a standstill, it will be very slow. It will progress very slow. So what are these molecules that are involved everywhere from digestion to DNA replication in our body? Enzymes. So what is an enzyme? So students, this is the definition of an enzyme. हम इस definition को पढ़ेंगे और एक एक word को बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे. So what is an enzyme? The definition of an enzyme is a biological molecule, mostly proteins, that act as catalyst to speed up chemical reactions within living organism and do so without getting used up. So by defining enzyme in this way, you are covering almost everything about enzyme, right? अब इस definition के जो underline words है उसको एक एक देखते हैं और enzyme क्या है उसको और डिटेल्स में समझते हैं. ओके, सो एंजाइम इज अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल. बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल मीन्स क्या? एंजाइम हम उसी को बोलेंगे जो खाली, इसको भी मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, लिविंग बींग्स में होता है. क्लियर है? फिर आते हैं मोस्टली प्रोटीन्स. मोस्टली प्रोटीन से याद रखना, बिकॉज कैजुअली वी ऑलमोस्ट ऑलवेज थिंक कि एंजाइम मतलब प्रोटीन्स ही है. नो, दे आर मोस्टली प्रोटीन, बट कुछ एंजाइम्स कैन बी नॉन प्रोटीनेशियस ऑल्सो. ओके, सच एज एक्सेप्शन टू दिस, so non-protein में RNA sometimes does the job of a, or it functions like an enzyme, and such are called ribozyme. So this is the example of a non-protein enzyme and ribonuclease. यहाँ पे मैं एक स्टार दे देती हूँ, exception. Clear है? That act as catalyst. Catalyst मतलब क्या? जो जिसके देख रेख में कोई काम हो रहा हो, or something that is making the thing happen, right? तो यहाँ पे when we say biological and catalyst, what does it mean? कि enzymes खाली biology मतलब खाली living beings में ही होते हैं क्या? non living में नहीं होते? The answer is yes. And it brings to one more interesting fact or one more interesting line. So if I say, are all enzymes catalyst? What do you think the answer is? The answer is yes. But अभी उसको अगर पूरा उल्टा कर दूं, are all catalyst enzymes? The answer becomes no. Why so? तो क्या कहा था कि enzymes occur in living organisms. So enzymes are what? They are organic catalyst. और जो होते हैं दूसरा non living में, मतलब in the labs and all. Okay, that falls under the category of inorganic catalyst. So difference क्या है organic और inorganic catalyst में? Organic catalyst, which means enzyme, almost all are proteins.
और इनऑर्गेनिक में यूजुअली स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक निकल, प्लेटिनम एटसेट्रा. They occur in living cell, they occur in non-living, मतलब they are in the labs and in experiments. Specificity exists in case of enzyme, मतलब one kind of an enzyme or one type of an enzyme or one enzyme at its very individual level is going to catalyze only one kind of a reaction. एक enzyme हर तरह के reactions को catalyze नहीं करेगा. On the other hand, they are non-specific. Non-specific means what? एक inorganic catalyst एक से ज़्यादा reaction को catalyze कर सकते हैं. Clear है? Enzymes get denatured at high temperature. What is that high temperature? Beyond 40 degrees Celsius on an average. Okay? पर यहाँ ऐसा नहीं है. They do not get denatured. They keep on working efficiently even at high temperatures. Now there is an exception to it. Next वाला point पढ़ लो, उसके बाद बोलूँगी. Efficiency is very high for enzymes. Very high, very fast. They are less efficient when you compare them to enzymes. Now, enzymes get denatured at high temperature for most of the enzymes from most of the living organisms. This is true. But then there are bacteria, thermophilic bacteria or any thermophilic bacteria which live in very high temperature वाला conditions such as hot springs and all. वहाँ पे जो enzymes मिलते हैं they are thermally stable. Okay, so here there is an exception. और वैसा ही एक example है Taq polymerase. Okay, ये वाला एंजाइम आप क्लास 12 में बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले हैं एंड इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया थर्मस एक्वाटिकस. क्लियर है? तो हो गया. कैटलिस्ट बोलने से क्या होता है? खाली एंजाइम्स आर नॉट द ओनली कैटलिस्ट, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी होते हैं. राइट? ऑल एंजाइम्स आर कैटलिस्ट्स बट ऑल कैटलिस्ट्स आर नॉट एंजाइम. आई होप दिस पॉइंट इज नाउ कंप्लीटली क्लियर इन योर माइंड. अगर है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और इसी बात पे एक लाइक बनता है. ओके. टू स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. स्पीड अप का हम अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं? सो स्पीड या एफिशिएंसी का अंदाज़ा लगाने के लिए लेट अस लुक इनटू दिस रिएक्शन. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इज कंबाइनिंग विथ वाटर. सो लेट अस इमेजिन कि ये नहीं है. कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विथ वाटर टू प्रोड्यूस कार्बोनिक एसिड. तो इसी रिएक्शन को हम विद एंजाइम और विदाउट एंजाइम देखते हैं. विद एंजाइम $600,000 मतलब 6 lakh molecules of carbonic acid is formed per second. On the other hand, without enzyme 200 per hour, 200 molecules per hour. तो पता चल रहा है कि इससे almost 10 million times fast ये रिएक्शन हो जाता है. सो हाउ एफिशिएंट एंजाइम्स आर, वो कितना स्पीड बढ़ा देते हैं एक रिएक्शन का. और ये रिएक्शन पता है कहाँ होता है? इन आवर RBC. हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं ना टिश्यूज़ में, वहाँ से जो आ रहा है, देयर इट कंबाइंस विथ वाटर टू प्रोड्यूस कार्बोनिक एसिड और दैट इज़ हाउ इट इज़ कैरिड. ओके. तो ये स्पीड तो मेंटेन करना ही है, वरना तो टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होने लगेंगे. तो पता चल रहा है कि हाउ फास्ट एंजाइम्स कैन रिएक्ट और हाउ they can speed up the reaction. Now let us come to chemical reactions. Now reactions जो हमारे बॉडी में है या in general, do you think all reactions are chemical? No, all reactions का nature chemical नहीं होता. Reactions can be of two types, physical as well as chemical, right? So reactions can be physical, chemical. Physical changes कैसे कैसे हो सकते हैं? Is change in shape without, this is actually without breaking the bonds. जैसे किसी चीज को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिया. ओके. सेकेंड चेंज कैन बी चेंज इन द स्टेट ऑफ द मटीरियल और द सब्सटेंस.
सच एज वाटर टू वाटर वेपर या वाटर टू आइस, फिर आइस टू वाटर एंड वाटर वेपर टू वाटर, राइट। अब आते हैं केमिकल में। केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंजेस मीन्स व्हाट? चेंज बाय ब्रेकिंग ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मिंग न्यू बॉन्ड्स, which means what? We are bringing the change in the chemical nature or chemical structure of that molecule, right? Now इसके भी it can be done या it can occur by two ways. First, either it can be a one step change or it can be through a metabolic pathway. Now what is a metabolic pathway? Metabolic pathway is a multi-step reaction, multi-step changes. वहाँ पे सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट के बीच में मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, वेर ऑल द स्टेप्स या ईच कैन बी catalyzed by either one enzyme or more than one enzyme. That is called a metabolic pathway. Example is glycolysis. Here glucose is broken into two molecules of pyruvic acid या pyruvate. और केमिकल फर्स्ट वाला जो है, नाउ कमिंग बैक टू दिस, हियर ऑल्सो वी कैन से कि केमिकल रिएक्शंस, वन स्टेप रिएक्शंस कैन बी अगेन इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक में एग्जाम्पल इज गिवन इन योर बुक. दिस रिएक्शन, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, बेरियम सल्फेट प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. ये हो गया इनऑर्गेनिक, कोई कार्बन इस पे है ही नहीं. दूसरा कैन बी ऑर्गेनिक, वेयर एग्जाम्पल इज सुक्रोज. सुक्रोज का भी दे सकते हैं, दैट इज ऑल्सो ये इंटू ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज. एक्चुअली आपके सिलेबस में इन द एनसीईआरटी बुक्स द एग्जाम्पल ऑफ स्टार्च इज गिवन, सो दैट इज ऑल्सो नॉट एन इश्यू. स्टार्च भी तो एक कार्बोहाइड्रेट ही है, पॉलीसैकेराइड है. इट इज ऑल ग्लूकोज, राइट. क्लियर हो गया. सो विद दिस वी आर डन विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस. तो जो जो था उस डेफिनेशन में, आई होप आई हैव बीन एबल टू declutter and make it easy for you to understand, right? तो अब वापस आते हैं एंजाइम में. एंजाइम एज अ प्रोटीन. तो एंजाइम अगर प्रोटीन है तो जैसे प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स सेकेंडरी एज वेल एज टर्शियरी होते हैं, सेम विद द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स. इट कैन बी ईदर अ सेकेंडरी प्रोटीन और अ टर्शियरी प्रोटीन. Now if you look into the structure of enzymes which have a tertiary protein structure, वहाँ पे what happens is the backbone of the secondary protein, it folds upon itself, right? और इस secondary structure में जो site form active sites होते हैं, as a result they come close. So they form the active sites. Substrate आके they attach to this active sites and that is where the reactions or the changes begin, right? So one thing that we saw about enzyme is that they speed up the reactions or they are highly efficient. So now let us begin by looking into how do they bring this speed, या how are they so efficient, okay? उसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ मैं, फिर समझाऊंगी. तो स्टूडेंट्स, इस डायग्राम के साथ दो चीज़ हम एक साथ समझेंगे. एक तो कि हाउ दे स्पीड इट अप, दूसरा कि हाउ द एंजाइम फंक्शंस. तो वी ऑल नो कि एंजाइम में क्या होता है. देयर आर दिस एक्टिव साइट्स, राइट, एंड द मॉलिक्यूल दैट टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट. तो एक्टिव साइट से कौन आके लगता है? सबस्ट्रेट. एंड व्हाट डज इट फॉर्म? इट फॉर्म्स एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ये जो है, दिस इज अ ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर एज वेल एज अ ट्रांजिएंट फेज. इसको क्या बोला जाता है? इसीलिए ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर.
वाइस ऑफ ट्रांजिएंट मतलब क्या है? ट्रांजिएंट मीन्स समथिंग दैट इज इन द फेज ऑफ ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन मतलब क्या? चेंज। मतलब ये एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है ये हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है, ये चेंज हो जाने वाला है, राइट? ये हो गया एंजाइम एंड ES कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे ओल्ड बॉन्ड्स आर बीइंग ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर बीइंग मेड एंड इट गिव्स राइज टू EP कॉम्प्लेक्स। EP कॉम्प्लेक्स क्या है? एंजाइम जिसमें प्रोडक्ट बन चुका है। एंड देन द फाइनल स्टेज इज E अलग फिर P अलग, राइट? ये मैं अलग से क्यों लिख रही हूँ E को? बहुत जगह में खाली P ही लिखा हुआ होता है, बट आई एम राइटिंग E फॉर योर कन्वीनियंस सो दैट यू कीप इट इन माइंड कि एंजाइम जो है वो अनचेंज्ड रह जाता है। क्लियर है? नाउ इसी को हम यहाँ देखते हैं। सो लेट अस, सो दिस इज ओके, दिस इज हाउ द एंजाइम वर्क्स। एंजाइम में सबस्ट्रेट आया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हुआ, इट इज अ ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर, ट्रांजिएंट फेज में है। वहाँ पे नए बॉन्ड्स बने, पुराने बॉन्ड्स तोड़े गए, नया प्रोडक्ट हो गया, एंजाइम प्रोडक्ट से, एंजाइम से प्रोडक्ट निकल गया, एंड दैट इज हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। ओके, अब हम इसको ग्राफ में देखते हैं। सो लेट्स टेक अ ग्राफ। द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल एनर्जी एंड द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द रिएक्शन का प्रोग्रेस या प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। क्लियर है? सो लेट अस टेक द सबस्ट्रेट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है हियर। सो उसका पोटेंशियल एनर्जी समवेयर हियर। क्लियर? नाउ इफ यू सी, यहाँ पे दो कर्व्स है। एट द पीक ऑफ द कर्व व्हाट डू वी सी? द एनर्जी, सॉरी, द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये एक ट्रांजिएंट है, क्लियर? तो यहाँ का जो एनर्जी है और यहाँ का एनर्जी है या यहाँ का एनर्जी है, वी सी अ डिफरेंस इन द एनर्जी। तो इससे क्या पता चलता है कि सबस्ट्रेट को एंजाइम से बाइंड करने के लिए एंड टू फॉर्म दैट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है? नाउ ये वाला जो कर्व है, यहाँ पे जो ES फॉर्म हो रहा है उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट द एंजाइम it is very high. Now this curve it shows कि ये इसी एनर्जी लेवल पे it has formed the enzyme substrate complex या the ES complex या the transient state structure. Clear? So basically इससे क्या पता चल रहा है कि how do the enzyme make reactions faster? They lower this activation energy. तो इससे रिएक्शन काफ़ी फास्ट हो जाता है। Is this clear? So what is the actual thing by which the enzymes are fastening up or making fast the reactions? It is by lowering the activation energy, and that is very clear from this diagram. समझ में आया? Have I been able to make it clear? Now ये वाला हो या ये वाला हो, ultimately दोनों फिर यहाँ से कुछ changes होके product बना रहा है, right? और यहाँ पे from here to here it can be either a single step chemical reaction or it can be a metabolic pathway. हमने सब पढ़ा है ना अभी, तो उसी को इस ग्राफ में भी समझा दे रही हूँ। Now one thing very important, substrate का एनर्जी कहाँ था? यहाँ। प्रोडक्ट का एनर्जी कहाँ है? यहाँ नीचे है। If we look in the y axis, प्रोडक्ट काफ़ी नीचे है। तो यहाँ पे मीन्स व्हाट डज दैट मीन कि सबस्ट्रेट से जब प्रोडक्ट बन रहा था लॉट ऑफ एनर्जी वाज गिवन आउट। सो व्हाट डज दिस डिनोट? दिस काइंड ऑफ अ कर्व जिसमें कि प्रोडक्ट नीचे सबस्ट्रेट ऊपर डिनोट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में वी डू नॉट नीड टू गिव एनी हीट बाहर से, क्योंकि वो तो हीट छोड़ रहा है। अब आते हैं तो हीट हमें कहाँ देना पड़ता है? इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सो व्हाट एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ या कर्व कैसा होगा?
मैं एक अलग इंक से दिखा रही हूँ, उसका भी कुछ ऐसा यहाँ पे होगा। मैं इसको और ये सबस्ट्रेट है, यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है? तो इफ यू सी सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल नीचे, प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल ऊपर। If the curve is like this where the product is above the level of the substrate, it denotes an endothermic reaction. तो बच्चों tell me, इससे exothermic reaction, energy level, lowering of activation, energy substrate, enzyme substrate complex, सारी बातें हम जो पढ़ रहे थे, is everything clear to you now? Please let me know in the comment section. Okay? नाउ एक बात तो है, आई होप ये आप सबको समझ में आ गया कि हाउ डज द एंजाइम वर्क और हाउ डज इट मेक द रिएक्शन फास्टर। अब है कि हाउ डज द एंजाइम फिट इनटू द सबस्ट्रेट या द सबस्ट्रेट फिट इनटू द एंजाइम। अभी आपके बुक से वो टॉपिक हटा दिया गया है, बट फिर भी देयर आर 2 to 3 लाइन्स दैट आई वुड लाइक टू से। इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज एंड दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी इजीली। ओके, नाउ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम को 2 हाइपोथेसिस से समझाया जाता है। एक है लॉक एंड की हाइपोथेसिस, दिस वाज गिवन बाय एमिल फिशर। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। तो कहा जाता है कि द सबस्ट्रेट एंड द पॉकेट्स, द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम, दे आर वेरी स्ट्रक्चरली स्पेसिफिक। जैसे ये देख रहा है यहाँ पे जैसा फोल्डिंग है, इसका फोल्डिंग है, दे ऑलमोस्ट मैच विथ ईच अदर लाइक लॉक एंड की। जैसे अ की इज स्पेसिफिक टू अ लॉक और वो उसी वाले लॉक में घुसता है, सेम हियर। तो कहते हैं कि दिस इज द एंजाइम, दिस इज द सबस्ट्रेट, दे कम एंड फिट लाइक अ लॉक एंड अ की, और फिर रिएक्शन हो जाने के बाद दे आर रिलीज्ड। क्लियर है? दूसरा थ्योरी है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। यहाँ पे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट। ओके, तो एंजाइम आफ्टर, जैसे when the substrate comes, the enzyme undergoes some kind of a conformational change to fit the substrate. तो उसका यहाँ ये जो है, यहाँ पे द एंजाइम अंडरगोज सम स्ट्रक्चरल चेंजेस टू फिट इन, उसी के लिए कहा जाता है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। हु इंड्यूसेस द चेंज? इट इज द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। क्लियर है? यही एक छोटा सा लाइन था। अब हम देखते हैं कि एंजाइम के फंक्शनिंग को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। ओके, तो फैक्टर्स ऑफ एंजाइम, देयर आर 3 डिफरेंट फैक्टर्स, और 3 डिफरेंट फैक्टर्स को हम 3 डिफरेंट ग्राफ से समझेंगे। सबसे पहले है टेम्परेचर। तो लेट अस लुक इनटू दिस ग्राफ। यहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड इन द वाई एक्सिस, एट दिस एक्स इज फॉर टेम्परेचर। तो क्या देखते हैं हम, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, द एंजाइम एक्टिविटी गोज अप एंड दिस इज द पीक, राइट? आफ्टर दैट पॉइंट, जब टेम्परेचर और भी बढ़ रहा है, एंजाइम एक्टिविटी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, राइट? पीएच का भी अगर हम देखें, वी सी अ सिमिलर पैटर्न। एक पीएच में जाके वी कैन सी दैट द एंजाइम एक्टिविटी इज एट इट्स पीक। उसके बाद जैसे भी हम पीएच बढ़ा रहे हैं, एंजाइम गेट्स ऑन बिगिंस टू डिक्लाइन। तो उससे क्या पता चलता है, ये जो टेम्परेचर, ये स्पेसिफिक टेम्परेचर जो है और ये स्पेसिफिक पीएच जो है, जिसमें द एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिमल टेम्परेचर और द ऑप्टिमल पीएच। समझ में आ रहा है? बियॉन्ड दैट ऑप्टिमल, तो ये क्या हो गया, ऑप्टिमल टेम्परेचर, और ये हो जाएगा ऑप्टिमल पीएच। Beyond that, activity starts declining. Now for temperature, and क्या होता है, there is a general rule of thumb कि for every 10 degree rise or decrease, the activity of the enzyme either doubles
और reduces by half. क्लियर हो गया टेम्परेचर pH का इफेक्ट. अब हम आते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट में. ओके, नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट में इन दिस ग्राफ डू यू सी द वाई एक्सिस. इसमें क्या लिखा हुआ है? वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन. वेलोसिटी इज द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन इट हैज अ डायरेक्शन. अब आप पूछेंगे कि व्हाट इज रेट. सो रेट ऑफ द रिएक्शन इज dp dt, means the amount of product formed by the amount of time. जो स्पीड का नॉर्मल मेजरमेंट होता है, राइट, वही रेट है. और इसी रेट को जब एक डायरेक्शन में मिल गया, इट बिकम्स द वेलोसिटी. सो नाउ लेट अस कम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का एंजाइम के ऊपर क्या इफेक्ट होता है. इस ग्राफ में जाने से पहले लेट अस टेक कि यहाँ पे कुछ कुछ एंजाइम्स है. ओके, पहले हमने सिर्फ 2 ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डाले. तो देयर आर 2 एंजाइम्स, 2 आर फिटिंग इनटू इट, बाकी के 2 खाली है. तो रिएक्शन एक रेट पे चल रहा है. तो फिर हमने सबस्ट्रेट को इंक्रीज किया. वी गिव द थर्ड वन, द रेट इंक्रीजेस. उसके बाद हमने और थोड़ा सा दे दिया. तो क्या होता है, जितने भी एंजाइम्स थे और उनके जितने भी एक्टिव साइट्स थे, सारे के सारे आर नाउ ब्लॉक्ड और ऑक्यूपाइड बाय सबस्ट्रेट. नाउ इट इज एट इट्स मैक्सिमम या इट हैज रीच्ड अ सैचुरेशन. इसके बाद हम सबस्ट्रेट डालते जाएं, क्या होगा? कोई फर्क पड़ेगा इन द वेलोसिटी? नो. व्हाई? बिकॉज और एंजाइम्स बचे ही नहीं हैं या और एक्टिव साइट्स बचे ही नहीं हैं, राइट. क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? उसी को अब ग्राफ के फॉर्म में देखते हैं. सो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और ये वेलोसिटी है. तो पहले पहले जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, इट इज लाइक अ सिग्मॉइड कर्व. ये उठते जा रहा है, उठते जा रहा है, एंड बियॉन्ड वन पॉइंट आफ्टर सम टाइम वी सी दैट इट बिकम्स फ्लैट. मतलब अब इस पे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का और कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, राइट, क्योंकि ये सैचुरेशन में सारे एंजाइम्स पहुंच गए हैं. नाउ दिस पॉइंट वेयर द वेलोसिटी इज एज इट्स मैक्सिमम, उसके जहां पे ये फ्लैट हो जा रहा है उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता, दैट इज कॉल्ड वी मैक्स. एंड दिस पॉइंट where the velocity, maximum velocity is at its half, जिस कंसंट्रेशन पे, जिस सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे हाफ द मैक्सिमम वेलोसिटी इज रीच्ड, दैट इज कॉल्ड माइकलिस कांस्टेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय Kn. ये डिफाइन तो नहीं किया हुआ है आपके बुक में, बट इन द ग्राफ दिस इज मेंशन्ड, सो प्लीज पे अटेंशन टू दिस. क्लियर है? तो हो गया द फैक्टर्स विच अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम. नाउ वापस हम इस सबस्ट्रेट पे आते हैं. क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट जब हम डाल रहे हैं, one thing that the enzyme has to avoid is some chemicals called inhibitors. What are inhibitors? So what are inhibitors? Inhibitors are any molecule which binds with the enzyme and blocks its activity. Clear? Clear है? और inhibitors में से there are some inhibitors का ही एक सब कैटेगरी है where the molecule is structurally very similar to the substrate and they compete for the same active site. They are called competitive inhibitors. Okay? So competitive inhibitors, they are structurally same to the substrate, similar to substrate. तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एग्जाम्पल हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो एग्जाम्पल है एंजाइम इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज. इसका नेचुरल सबस्ट्रेट इज सक्सिनेट, बट इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन है? मेलोनेट. मेलोनेट का स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक सक्सिनेट से मिलता है, तो इसलिए वो उस एक्टिव साइट के लिए compete भी करते हैं. तो इफ वी हैव
a competitive inhibitor in the environment, how do we take care of its effect? How do we take care or how do we reverse its effect on the Vmax? By increasing the substrate. बहुत बढ़ा देना पड़ेगा so they compete among themselves और substrate पहले उस साइट को ब्लॉक कर दे. यही तरीका है, राइट? नाउ ये competitive inhibition का जो प्रोसेस है ये, हाँ, तो ये जो competitive inhibitors है, ये जो मैकेनिज्म है, this is used very much in controlling the bacterial pathogens. Okay? तो with this we are done with everything about enzyme. अब जो बच गया है that is nomenclature of enzyme, वो भी देख लेते हैं. तो classification of enzymes में पहले देखते हैं classification. So the IUB had suggested a 4-digit classification. 4-digit classification मतलब क्या कि किसी भी एंजाइम में के आगे देयर बी 4 डिजिट्स. तो एक एक डिजिट्स का क्या सिग्निफिकेंस है? फर्स्ट डिजिट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द क्लास ऑफ द एंजाइम. कितने क्लासेस हैं? 6 क्लासेस हैं. और इसके बाद जब हम क्लासेस पढ़ेंगे, हम क्लासेस को बिल्कुल उसी सीरियल ऑर्डर में पढ़ेंगे 1 to 6, जिस सीरियल ऑर्डर में इन्हें डिफाइन किया गया है. पहले सबसे पहले जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेसेस है और सेकंड इज ट्रांसफरेज. तो 1 2 3 यही नंबर देके दिया गया है. हम कभी ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि हमारी मर्जी है तो हम ट्रांसफरेज को नंबर 1 देके पढ़ रहे हैं. इफ एनीवन इज डूइंग दैट, दैट इज वेरी रॉन्ग. ओके, आप ट्रांसफरेज को अगर पहले पढ़ेंगे भी तो बिफोर ट्रांसफरेज यू शुड राइट द नंबर 2. ओके, सेकेंड डिजिट रिप्रेजेंट्स द सब क्लास. Now एक सब क्लास के there can be from anywhere from 4 to 13 sub classes. Clear है? Third digit represents the sub class and the fourth digit represents the individual enzyme. ये है इसका flow. Now let us look into that 6 classes of enzymes. Okay? So बच्चों, मेरे पीछे ये चार्ट है. There are 3 columns that represents the enzyme, this the function and this the example. तो सबसे पहले है oxidoreductases या dehydrogenase. How do they function? They function by catalyzing the oxidation reduction reactions that involve transfer of electrons या protons. Clear है? जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं, there are 2 substrate involved. एक reduced form में है, दूसरा oxidized form में है. तो यहाँ ये क्या, इसने इलेक्ट्रॉन अपने सारे लॉस करके ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, ये गेन करके रिड्यूस्ड फॉर्म में है. अब क्या होगा? नाउ दिस वन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड. हाउ? बिकॉज इट इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स, राइट? इसने पहले गेन करके रिड्यूस्ड फॉर्म में था, अब ये ऑक्सीडाइज हो गया एंड दिस वन गेट्स रिड्यूस्ड. इसका एग्जाम्पल हम कहाँ देख सकते हैं? लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ एन अल्कोहल विच इज रिएक्टिंग with NAD. And the enzyme is alcohol dehydrogenase. Now it is very important for you to keep it in mind. Dehydrogenase enzyme जहाँ भी involved होगा, there is going to be transfer of protons and electrons. Okay. So this reaction, alcohol is oxidized to aldehyde, and this gets reduced to NADH2. Clear है? ये डिहाइड्रोजनस कैटेगरी वाले जो एंजाइम हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस. और आगे जो भी आप चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें डिहाइड्रोजनस एंजाइम जहाँ भी इन्वॉल्व होगा विथ NADH2, ऑलवेज रिमेंबर देयर इज गोइंग टू बी अ ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर. क्लियर है? फिर है ट्रांसफरेज नंबर 2. दिस ट्रांसफर स्पेसिफिक ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर, और उसमें हाइड्रोजन को इन्वॉल्व मत करना. क्लियर? नो दिस इज द सबस्ट्रेट S प्लस इसके साथ कोई एक ग्रुप लगा हुआ है विच इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर G, और ये दूसरा सबस्ट्रेट है. यहाँ से उठा के इसको यहाँ बिठा दिया. एग्जाम्पल काइनेज. काइनेज आर द ग्रुप ऑफ एंजाइम्स विच हेल्प इन फॉस्फोरिलेशन. वो फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करने के काम आता है. सो अभी से इस बात को याद रखना कि wherever there is a reaction involving a phosphorylation, अगर कभी क्वेश्चन आ भी जाए
तो ऑलवेज लुक फॉर द काइनेज एंजाइम. काइनेज इज एसोसिएटेड विथ फॉस्फोराइलेशन. प्लीज इस टिप को दिमाग में रखना. जैसे ग्लूकोज प्लस एटीपी, यहाँ पे इसका फॉस्फेट जाके ग्लूकोज पे जुड़ने वाला है. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम? हेक्सोकाइनेज. कहीं पे ग्लूकोज काइनेज भी दिया हो, कहीं पे शायद सिर्फ काइनेज ही लिखा हुआ हो, बट ऑलवेज लुक फॉर द नेम काइनेज. क्लियर है? नाउ इट बिकम्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस एडीपी. एडीपी मैंने लिखा नहीं है, जगह बहुत कम है. थर्ड ग्रुप इज हाइड्रोलेसिस. How does it function? Breakdown with addition of a molecule of water. ये किस टाइप के बॉन्ड तोड़ते हैं? CCCN, एस्टर बॉन्ड, इथर बॉन्ड. जैसे एस्टर बॉन्ड जब होता है, a molecule of water is eliminated, right? अब वही molecule of water को वापस लाके जोड़ के it is broken into 2 substrate. एसिड एक तरफ चला जाता है, अल्कोहल दूसरी तरफ चला जाता है. क्लियर है? what kind of enzymes fall under this category? Proteases, amylases. ये एग्जाम्पल एक इसका हम देखें. सुक्रोज with the addition of water under the enzyme sucrase is broken down into glucose and fructose. क्लियर है? Now lysase में भी the name itself involves कि इसमें भी कुछ एक ब्रेकडाउन होने वाला है. तो फिर दोनों में फर्क क्या है? हाइड्रोलिसिस में क्या था? एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर तो इन्वॉल्व होना ही है. जैसे हम कभी कभी कुछ चीज़ को तोड़ने के लिए या मार्बल काटने के लिए पहले पानी छिड़कते फिर काटते हैं ना, सेम विथ हाइड्रोलिसिस. तो लाइसेस क्या? दे क्लीव विदाउट एडिशन ऑफ वाटर. क्लीव मतलब बिल्कुल काट देना उसको, राइट? जैसे यहाँ पे एक कंपाउंड है, दिस इज द एडिशनल ग्रुप. अब इसके साथ क्या करते हैं? इस पूरे ग्रुप को बीच में से काट दिया. सो नाउ वी हैव दिस सेपरेट एंड दिस सेपरेट. अंडरस्टूड द मैकेनिज्म हाउ दे वर्क? एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल इज एल्डोलेज एंजाइम. फ्रुक्टोज 1,6 bis phosphate. एल्डोलेज. नाउ फ्रुक्टोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड. उसको डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, दोनों ही 3 कार्बन है. दोनों को उसी तरह से तोड़ देते हैं. क्लियर? फिर आइसोमरेज. आइसोमरेज इज व्हाट? आइसोमर्स बनाने वाला, नाम पे ही है. सो रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. एग्जाम्पल, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आइसोमरेज इज कन्वर्टेड टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट. एंड ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इसी चैप्टर में हमने पढ़ा है कि दे आर आइसोमर्स. देन लाइगेज में ही है, कुछ जुड़ने वाला है. अब तक हम तोड़ रहे थे, अब जोड़ेंगे. कैटालाइज कोवेलेंट बॉन्डिंग ऑफ 2 substrate. हाउ? What kind of bonds they usually make? CS, CO, CN by using ATP. क्लियर है? इस पॉइंट को हमेशा याद रखना. नाउ एग्जाम्पल इसका है जैसे फॉस्फोइनोल पाइरुवेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है. दिस इज द 4th कार्बन. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम पेप्केज and ATP, it is converted into a 4 carbon compound oxaloacetic acid. Okay? So बच्चों एक बात याद रखना, यहाँ पे ये जो रिएक्शंस है ये अगर अभी बहुत याद ना हो तो भी चलेगा, बिकॉज जैसे ही आप सब्सिक्वेंट चैप्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन वो करने वाले हैं, ये सब समझ में भी आएगा. और तब बाय द एंड ऑफ दिस सेशन एवरी रिएक्शन विल बी देयर इन योर हेड. ओके? क्लियर है? खाली ये बात याद रखना कि डिहाइड्रोजनस जब भी होगा, हाई चांसेस है NADH या FADH कुछ ना कुछ होने ही वाला है उसके पास, बिकॉज दे आर द वन इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स. ओके? ये टिप मान के ही चलो. क्लियर है? सो विद दिस वी आर डन विथ नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम. आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है या मैं आपको समझा पा रही हूँ. If so, please give a like to the video and please give your comments, leave a comment in the comment section. That really makes a lot of sense for me. Okay? तो इसके बाद एंजाइम के कोफैक्टर्स क्या होते हैं, व्हाट इज एन एंजाइम, द होल एंजाइम एंड पार्ट ऑफ इट, वो देख लेते हैं. तो बच्चों नाउ वी आर इन द लास्ट लेग ऑफ द टॉपिक एंजाइम. क्या है इसमें नाउ
Enzyme consists of two parts, a proteinaceous part or the protein part, which is called apoenzyme, and the non-protein part, which is the cofactor. Now enzyme functionally उनका role क्या है? To catalyze reactions, right? Catalytic role. Now do you know, without the help of this cofactor, only the protein part या the apoenzyme, they can never do the catalytic job. उनको cofactors चाहिए ही चाहिए to function as an enzyme. Okay? Otherwise तो कोई सा भी प्रोटीन कभी भी कुछ भी कैटालाइज कर देता. क्लियर है? Now cofactors can be further of three types: prosthetic group, coenzyme and metal ions. इन दोनों को, these two are organic in nature, ये metal ion है inorganic. So let us see what prosthetic group is. Prosthetic group, जैसे हम prosthetic दांत लगाते हैं, या those who do not have a limb, right, they put a prosthetic limb, तो वो होता क्या, it is very tightly fitted. तो वैसा ही समझ लो, it is very tightly bound to the apoenzyme and it is always with the apoenzyme. Clear है? It is like a 24-hour service. Okay? Example is heme in the enzyme peroxidases. Peroxidases क्या करते हैं? It catalyzes the reaction where hydrogen peroxide is converted into water and oxygen. Clear है? आते हैं फिर coenzyme पे. What is coenzyme? Now they are the cofactors which is associated with the apoenzyme for a very short time and only when required. So they are like the on call. जब ज़रूरत पड़े तो आके काम करके वापस चले जाएंगे. Okay, they are not with them with the apoenzyme 24 hours. Examples are many: vitamins, NAD, NADH, FAD. Okay. फिर आते हैं metal ions पे. Now metal ions, how do they? These cofactors, they form coordination bonds with side chains of the active site. Okay, and that is how they help. Example is zinc for the enzyme carboxypeptidases. Clear है? So with this we are done with everything about enzyme that is given in your syllabus. So I hope ये वीडियो आपको पसंद आया and I hope मैंने जो समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आया. Okay? So please those who have not yet subscribed to my channel, it is my request कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें. Like the video, please leave your comment and I hope ये चैनल आपको पसंद आएगा in future and I'll be able to bring improved content for you. So very soon I'm going to see you with a video on another chapter. Till then, take care of yourself, study hard and God bless you all. Bye.